ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਉਣੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੌਪ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਫੁੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਰਬੀਸੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਚੜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਨਰ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੋਰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਪੀਸੀਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੋ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੱਡ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡੋਨਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੌਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਫਰੈਸ਼ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਹਿਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੇਫਟੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਵਿਡ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਵਿਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਹ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨਾ, ਲੋਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਈ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 20-25 ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ 38 ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦੀਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰਚ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਗੁਣੇ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਪੂर्ण ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਗਾ। ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੌਣ ਕਵੇ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਵਰ ਸੀਗੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਨੋਰਮਲ ਦਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਦੀ ਬੁੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਵਰ ਤੇ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਵਰ ਚੜਨ ਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮੱਚਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਦੋ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ स्ट्रांग हैगा जी, थोड़ा बीवेयर रहो, बचो अपने आप को। ठीक है डॉक्टर साहब। देखो अभी भी जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं, 300 के आसपास केस जो है आ रहे हैं, कभी 300 से बढ़ जाते हैं, कभी उससे कम हो जाते हैं, पर जो सिचुएशन है वो जैसे 15 फरवरी के बाद लगातार केस बढ़ रहे, अभी भी केस जो है बढ़ रहे हैं। पर जो हमारे हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी जो अगर बात करूँ मैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में दोनों फैसिलिटी हैं, L2 की है, L3 के, उसके अलावा हमारे 28 जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे L2 और L3 की 24 जो हैं वो L2 L3 दोनों दे रहे हैं, और 8 हॉस्पिटल जो हमारे हैं सिर्फ L2 लेवल है, मगर 32 हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के हमारे साथ काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मिलिट्री हॉस्पिटल है। पर ऑक्यूपेंसी जो है हमारी वो अभी 40% के कम चल रही है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करूँ जो L2 लेवल है अभी सिर्फ 19% है, 20% है ऑक्यूपाई हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटी है, अगर बेड ऑक्यूपेंसी के हिसाब से वी आर कंफर्टेबल, पर साथ साथ मैं लोगों को यही अपील करूँगा कि अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है, सैचुरेशन कम हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जहाँ कोई उनके जो होते हैं लिप्स या फिंगर टिप्स हैं जो अगर नीले होने लग जाते हैं, तो तभी उनको उससे पहले तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाएं, वेट ना करें। और साथ साथ जैसे जो उनको फतेह किट मिल रही है उससे अपना टेम्परेचर नोट करें, अपनी सैचुरेशन नोट करें। अगर सैचुरेशन कम हो रही है तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो डेथ्स हो रही हैं उनका एक जो बड़ा कारण ये है कि लोगों की रिपोर्टिंग है जो बहुत लेट हो रही है। जब सैचुरेशन उनकी फॉल कर जाती है 60 है 65 है, साथ में चेस्ट में उनके जो लंग्स में इन्फेक्शन आ जाती है, सीवियर इन्फेक्शन आ जाती है, उस स्टेज पे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो मैनेजमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, उससे क्या मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई जो पेशेंट है वो टाइमली गवर्नमेंट में सेक्टर में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में रिपोर्ट करता, तो उसको जो प्रोग्नोसिस है उसके बचने के कारण वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस करके मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत बढ़ती है तो इमीडिएटली वो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में रिपोर्ट करें। बाकी साथ साथ जैसे हमने पहले कोरोना में कंट्रोल पाया वो लोगों के साथ से पाया, जैसे लोगों ने मास्क लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी, सैनिटाइजेशन मेंटेन की थी। अब हमारे पास एक विकल्प और है कि वैक्सीनेशन का। तो उससे मैं यही कहूँगा लोगों से कि वैक्सीनेशन जैसे 45 के ऊपर सबके लिए अब अलाउड है, उसको कोई बीमारी है या नहीं है, तो आगे बढ़कर जैसे अमृतसर में तकरीबन 1.25 लाख में अगर कहूँगा लोगों को जो वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है, 1 लाख प्लस हम जा चुके हैं हम, तो किसी को भी कोई मेजर तकलीफ नहीं हुई, एक्सेप्ट के थोड़ा सा फीवर हुआ, जहाँ थोड़ी दर्द हुई है। इस करके जो एक शंका थी, एक सोशल मीडिया पे जो अफवाहें थी वो सारी
प्रैक्टिकली उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ कि 1 लाख से ऊपर लोग तो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उसमें सीनियर सिटीजन ने भी 60,000 से ऊपर लगवा चुके हैं। तो इतना बड़ा जो सेक्शन सोसाइटी का था वो लगवा चुका, तो लोगों जो भी एलिजिबल हैं तकरीबन 6.5 लाख आदमी जो एलिजिबल है अमृतसर में। तो और हमारे 320 केंद्र जो हैं सेहत वाले, जिसमें से 73 प्राइवेट है, बाकी सारे सरकारी हैं। बेशक वो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इवन सब सेंटर लेवल पर भी जो ये हमारे वैक्सीनेशन की फैसिलिटी ऑल आर एक्टिव। तो लोगों को मैं अपने आप खुद ब खुद जहाँ जाकर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऑडियो वायरल हो रही है अमृतसर की को कहकर वायरल हो रही है कि अमृतसर के एक डॉक्टर की बातचीत हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि स्थिति इतनी ज़्यादा है, मतलब बहुत डराया गया है इस ऑडियो में कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं। और ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को दोनों डोजेज लग चुकी हैं, उसके बाद भी उसको फिर से वो कोरोना की चपेट में आ गया। तो इसके बारे में आप देखो, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यही बात कही है कि अगर आपको वैक्सीन भी लगी है तो भी आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए जी। तो देखो, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी एंटीबॉडीज डेवलप होती है वैक्सीन से, पर फिर भी प्रिकॉशन ज़रूरी है। एंड जो ऐसे केसेस हैं कि वैक्सीन के बाद भी उनको पॉजिटिव आए हैं, वो ऐसे केस होंगे जिनमें वो आदमी बार बार जो है पॉजिटिव केसेस को एक्सपोज हो रहा है। पर फिर भी ऐसे केसों में, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमें अगर वैक्सीन लगी है, वो आदमी कम से कम वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, उसको वो डेथ वाला पार्ट वो अवॉइड किया जा सकता है। बाकी देखो, वैक्सीन के बाद भी जो है वो कोरोना, अगर आप फ्रिक्वेंटली एक्सपोज होंगे लोगों को जाकर, मास्क नहीं यूज़ करोगे तो पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर एंटीबॉडीज जो काम नहीं करेंगी, मतलब एक पहले व्यक्ति को कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीनेशन ले चुकी है, तो वो जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं वो फिर काम नहीं करती? नहीं, एंटीबॉडी तो मैं बोल रहा हूँ काम कर रही हैं जी, पर वो जो स्थिति है हमारी सीरियस होने की, वो वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, उसकी डेथ नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बड़ा फीवर हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है हमारे 80 से 90% जो वैक्सीनेशन कवरेज हमें इम्यूनिटी दे रही है। पर अगर हम उसके बावजूद वैक्सीनेशन के बाद हम मास्क नहीं पहन रहे, हम सोचते हम तो 100% चले गए हैं, हम लोगों में जा रहे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो वो जो है वो करना नहीं चाहिए। हम फिर भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के बावजूद ही आप मास्क लगाइए। आपको ये फ़ायदा है कि आप सीरियस नहीं होगे, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी, आपको वेंटिलेटर वाला जो पार्ट है जो होता है, डेथ हो सकती है, वो वैक्सीनेशन से यू आर सेफ। बिल्कुल, जान बचे। अपनी देखो, जान बचाना जो है वैक्सीनेशन का यही पार्ट है कि आपकी जान बचाई जा सके। फीवर हुआ कोई दिक्कत नहीं उसकी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब और एक इसमें बात है, हालांकि आपने पहले काफ़ी हद तक क्लियर कर दी, पर मैं इस ऑडियो के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा। कह रहे कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बच रही, आप लोगों को एडमिट नहीं कर रहे, कैसी स्थिति है कोई अभी? नहीं, जैसे हमने देखो, मानयोग मंत्री जो हमारे सोनी साहब हैं, उन्होंने रिव्यू किया था संडे को। डीसी साहब थे वहाँ, पुलिस कमिश्नर भी थे, और भी सीनियर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट थे, तो और भी थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, और सभी ने ये वहाँ बात बताई कि हमारे पास सफिशिएंट बेड्स आर देयर, स्टिल इट इज़ देयर। हम उसकी कैपेसिटी और भी बढ़ा रहे हैं। हमने 91 बेड उसमें और पिछले हफ्ते 91 बेड ऐड कर दिए हैं। और आज भी एक जो 5 तारीख को मीटिंग हो रही है, जिसमें पुलिस कमिश्नर चेयरमैन है उसमें डीसी साहब भी हैं, साथ में मैं भी रहूँगा, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है हम उनको आज 3:30 बजे बुलाया, ताकि उनकी जो बेड कैपेसिटी वो जो है, हमने उनको बोला कि 2 हफ्ते लेके एक तो अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको पोस्टपोन कर दीजिए। नंबर 2, हम उनसे वॉलंटरी मांग रहे हैं कि वो हमें कितने बेड और देंगे। तो उसके लिए आज रिव्यू मीटिंग भी हो रही है 3:30 बजे। तो आई थिंक ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि लोगों को अगर बीमार होते हैं तो बेड ना मिले, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी अमृतसर में। तो डॉक्टर साहब, जो होम आइसोलेशन, देखो पहले प्रॉब्लम बड़ी इसलिए कि होम आइसोलेशन की वजह से लोग घूमते रहे, तो अब क्या उस पर भी रिव्यू किया जाए कि होम आइसोलेट ना किया जाए या उनको हॉस्पिटल में रखा जाए कि ऐसी स्थिति ना बने? नहीं, होम आइसोलेशन तो देखो गवर्नमेंट ने बारे, मगर हाँ, होम आइसोलेशन का फ़ायदा है कि लोग जो है अपने घर में रहते हैं, उनको घर का परिवार के सदस्य के सामने रहते हैं। पर उसमें मैंडेटरी यही है कि जो होम आइसोलेशन अगर उसने करनी है बंदे को, वो अपने कमरे में रहे, उससे बाहर ना निकले। उसलिए हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो टीमें हैं, वो 20 थाने हैं जो सिटी के, वहाँ काम करना शुरू कर दिया है, और 15 थाने रूरल के हैं।
वहीं सारों में सेक्टर मजिस्ट्रेट जो उन्होंने काम करना शुरू हो गया है। इसके लिए डीसी साहब ने रिव्यू किया था जी सैटरडे को। तो अब फतेहगढ़ जो है वो भी जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के थ्रू मगर विदिन 24 आवर वो मरीजों को पहुंचाई जाएगी। पर मरीजों को हमने मैंडेटरी कर रहे हैं कि हमारा जो फील्ड टीम्स हैं वो उनके घर पे वो विजिट करेगी, साथ में उनको जो टीम फतेहगढ़ देने जाएगी वो साथ में कोवा ऐप पे उसको एक्ट भी कराएगी, ताकि उसकी हम जियो जो है फेंसिंग करेंगे, ताकि मरीज का हमें पता चलेगा कि वो अपने घर से बाहर निकला नहीं निकला। वो जियो फेंसिंग भी हम उसको ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने। ओके ओके। अगर करता है वायलेट करता है तो उसका तो हमें वो हमें पता चलेगा उसका। नहीं, उसका कोई प्रावधान भी है? नहीं, प्रावधान तो उसको फिर उस हिसाब से उसको जहाँ हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जहाँ उसको होम आइसोलेशन जो सख्ती होती है हाँ, वो की जाएगी। वो की